and synchronous generator. इतना आपको याद है, that is more than sufficient from the previous class. Okay, so I was in a bit hurry in the last class, so we were discussing about the types of torque के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, and then we'll see what are the condition for the continuous torque. एक continuous torque के लिए conditions क्या होते हैं वो हम देखते हैं. Okay, so as I told you there are two types of torques. Any idea कि कौन से types होते हैं वो दो types? Anyone? What are Reluctance and electromagnetic. Yes, very good. Yes, very good. So one is your reluctance torque, one is your reluctance torque, and next one is your electromagnetic torque. So we'll see the difference between these two torques. इन दोनों torque के बीच में हम difference देखेंगे, ठीक है? Because जब ये machine पढ़ेंगे, इन some थोड़ी जगह हम बोलेंगे कि the torque developed is an electromagnetic torque, and in synchronous we'll be discussing about this reluctance torque. So इसलिए आप लोग को difference पता होना है, because torque is nothing but the force that is been produced. Okay, so यहाँ पे देखिए, so इसको हम इस तरीके से डिस्कस कर सकते हैं. The same discussion what we have done in the last class. For suppose this is a north pole and this is a south pole. हमेशा जो आपके flux lines जो होते हैं, हमेशा your flux lines move in a straight line. इस तरीके से आपके flux line move करते हैं, right? For suppose if this is a north pole and if this is a south pole, अगर आपके पास एक north pole है और एक south pole है, तो flux line कभी भी इस polar pattern में move नहीं करते. Okay, हमेशा your flux line will be flowing in the straight line. What is the reason to this? I gave you a reason in the last class. Anyone? What is the reason? Sorry? एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है इस वजह से. ओके, एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है. यहाँ पर भी आप देखोगे, यहाँ पर भी रिलक्टेंस, यहाँ पर भी एयर गैप ही है और यहाँ पर भी एयर गैप है. सो हाउ कम रिलक्टेंस देन? तो दोनों में रिलक्टेंस सेम ही होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर भी आई डोंट हैव एनी. यस, if the length increases, if the length जिस मीडियम में फ्लो कर रहा है लेंथ बढ़ेगा तो मेरा रिलक्टेंस भी बढ़ेगा. तो इसलिए to minimize the reluctance, to make sure that the reluctance is very small, so it will always try to move in a straight line. Okay, so this was about the air gap. So हमेशा आपके जो flux lines होते हैं हमेशा straight line flow करते हैं, because the reluctance offered in this particular path is very small in comparison to this kind of pattern. तो हमेशा आपके flux lines straight ही move करते हैं, right? So now what is that we have is we have a north pole over here and we have a south pole. So what is that we have is we have a small iron piece over here. एक small iron piece है आपके पास यहाँ पे, which is free to rotate along this axis. Okay. Now what happens? अभी flux कैसे flow करता है? Flux इस तरीके से आपका इस pattern में आपका flux flow करेगा. So this is the pattern your flux will follow. Okay. What is the reason that flux will try to take the path through your iron piece? Reason क्या है इसका? What is the reason? एयर गैप को मिनिमाइज करेगा इसलिए. एयर गैप को मिनिमाइज करेगा इसलिए. ओके, फाइन, ठीक है. ओके, सो इन दैट ड्यू कोर्स अ टॉर्क विल बी प्रोड्यूस. बिफोर दैट द रीजन की इस पर्टिकुलर पाथ को क्यों चूज करेगा, द रीजन इज द रिलक्टेंस. जैसे मैंने बताया था कि इफ यू हैव टू रेसिस्टेंसेस, इफ दिस इज वन रेसिस्टेंस एंड दिस इज द अदर रेसिस्टेंस, एक का 1 ओम है और एक का 1000 ओम है, एक का, ठीक है, एक 1 ओम है, एक 1000 ओम है. सो करंट विल ऑलवेज ट्राई टू फ्लो थ्रू द पाथ हुज रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. सिमिलरली आपका फ्लक्स लाइन जब यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में आएगा, इट विल सी दैट I also have the path along this iron piece whose reluctance is very small in comparison to the reluctance of the air gap. Air gap के reluctance के comparison में आपका जो iron piece का जो reluctance होता है that is very very small. So that is the reason flux lines will try to deviate to this particular path. Okay. In this due course, what will happen is it will try to reduce the reluctance further. अभी यहाँ पे आप देखोगे ये जो पूरा particular path है, this is through your air gap. It is through your air gap. It will try to reduce the reluctance further. In that due course, what will happen? A torque will be produced. एक torque produce होगा, ठीक है? And because of that torque, what will happen? This is your north pole and this is your south pole. तो आपका iron piece जो होगा, that will align exactly between your north and south. And आपके जितने भी flux lines हैं अभी, all your flux lines will flow through your iron piece between the north and south pole. जितना भी आपका flux होगा, it will try to flow through this particular path because the reluctance offered is very small by this iron piece, ठीक है, in comparison to your air, ठीक है. So अभी यहाँ पे क्या हुआ है? Hello. See,
यू कैन ट्राई दिस एट होम ऑल्सो, घर पे भी आप देख सकते हो। आपने एक नॉर्थ पोल या दो मैग्नेट्स लिए, बीच में एक आयरन पीस को आप जैसे रखोगे, इट विल ट्राई टू अलाइन इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये अलाइन हो जाता है, राइट। व्हाट इज द रीजन? इट इज ट्राइंग टू रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफर्ड टू दिस पर्टिकुलर फ्लक्स लाइंस, राइट। So in that due course a torque is been produced so as to reduce the reluctance को कम करने के process में एक torque produce होता है on this iron piece, and that torque is called as the reluctance torque. Is that clear? So I hope that it is clear कि why do we add this term reluctance? Reluctance इसलिए add कर रहे हैं because so as to reduce the reluctance a torque is been produced. Reluctance को कम करने के लिए a torque is been produced. What is this? Okay, fine. So as to reduce the reluctance, a torque is introduced, and that torque is called as your reluctance torque. I hope this is clear. अगर किसी ने आपसे पूछा कि reluctance torque क्या होता है, I hope you can give this explanation. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. ठीक है. Thank you. Fine. Now we'll see what is this electromagnetic torque. ये electromagnetic torque क्या है, ये अभी हम देखते हैं next week. ठीक है. So now, again you have a north pole and a south pole, right? एक north and south pole है. And now you have an iron piece over here. आपके पास एक iron piece है यहाँ पे. Okay. Initially this was just an iron piece, right? यहाँ पे हमने कुछ यहाँ पे field नहीं दिया था, nothing but this is an electromagnet. अभी जो हम यहाँ पे place कर रहे हैं, this is an electromagnet. Electromagnet का मतलब क्या बताइए एक बार? What is an electromagnet? What is an electromagnet? Electromagnet वो होता है जिसपे हम flux induce करते हैं इस तरीके से. For suppose if I'm energizing this magnetic this iron piece, what will happen? Because of this current that is flowing, north and south pole will be induced. समझ में आ रहा है? Electromagnet सब लोग को पता ही है. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So this is an electromagnet over here. I'm not drawing the windings. Winding यहाँ पे draw नहीं कर रहा हूँ. Simply मैं यहाँ पे mention कर दूंगा आप लोगों को this one. This has a north pole. Oh, one second, let me do one thing. This has north pole and this has south pole. एक electromagnet था मेरे पास जिस पे मैंने winding पे supply दिया, जिसकी वजह से north and south pole यहाँ पे energize हुआ. अभी यहाँ पे क्या होगा बताइए? Previous case में क्या था? Previous case में we just had an iron piece and now we have a electromagnet over here जहाँ पे north and south pole यहाँ पे energized है. In this case what will happen according to you? Will there be any torque that is getting produced? यहाँ पे क्या कोई torque produce होगा? क्या यहाँ पे कोई टॉर्क प्रोड्यूस होगा? Yes, sir. Okay. So will that be clockwise or anti-clockwise? Clockwise. Anti-clockwise. It will be clockwise or anti-clockwise. यहाँ पे जैसे आप देखिए, जैसे Clockwise. यहाँ पे हमने देखा, आप okay. चलो we'll come to that later. यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे टॉर्क जो प्रोड्यूस हुआ था, this torque was in anti-clockwise direction. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे it was in anti-clockwise direction because it was moving in this anti-clockwise pattern. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, now the question remains the same. टॉर्क प्रोड्यूस होगा या नहीं? The answer is yes. Yes sir, टॉर्क प्रोड्यूस होगा. Will it be clockwise or anti-clockwise? The answer is Clockwise. the answer is clockwise. क्या मुझे बता सकते हैं what is the reason that आपने बोला कि ये clockwise होगा? कुछ सोच के बोला होगा आपने. What is the reason? सर क्योंकि नॉर्थ पोल रिपेल करेंगे, उधर से साउथ रिपेल करेगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा. So Okay, fine, different very good. poles attract करेंगे, that's why. Okay, fine, ठीक है. So north and north will repel, or else I would say that north and south will attract. So जिसकी वजह से ये clockwise pattern में torque produce करेगा. Clockwise pattern में torque produce करेगा. And यहाँ पे जो torque produce होगा, यहाँ पे जो torque produce होगा, that torque is called as your electromagnetic torque. That torque is called as your electromagnetic torque. ठीक है? So अब मुझे बताइए, how do you define this electromagnetic torque now? जैसे हमने reluctance torque को define किया था, in the process of reducing the reluctance, a torque is been produced, and that torque is called as the reluctance torque. Similarly, how do you define this electromagnetic torque now? How do you define this electromagnetic torque now? Anyone? When a current carrying conductor placed in a magnetic field. It is not a current carrying. It is not actually a current carrying conductor. It is just an iron piece. चलो ठीक है.
So the simple way of giving the answer is uh, whenever you have, for suppose if I consider this to be a stator magnetic field, ये जो नॉर्थ एंड साउथ पोल है इसको मैं स्टेटर मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ रोटर मैग्नेटिक फील्ड। whenever two magnetic fields interact, a torque is being produced, and that kind of torque is called as the electromagnetic torque. Two magnetic fields कौन से हैं? एक तो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, एक रोटर मैग्नेटिक फील्ड। whenever two magnetic fields interact, a torque is being produced, and that torque is called as a electromagnetic torque. Is this definition clear? सिंपल तरीके से इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करते हैं एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एंड उस टॉर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ओके, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे व्हाट विल बी द फाइनल पोजीशन ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेट इज दिस वे। आपका जो फाइनल पोजीशन क्या होगा देखिए यहाँ पे एक बार, दिस इज हाउ इट विल बी। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने के बाद में this will be a north and this will be south pole. Okay, finally clockwise direction में move किया electromagnetic torque की वजह से, and finally इस position में आके ये set हो गया। Is this clear? Yes, Yes. sir. Yes, sir. Okay, fine, this is clear. चलो ठीक है। So this is the first basic thing that you should know. There are two types of torques in a rotating machine. One torque is reluctance torque and one torque is an electromagnetic torque. And दोनों के बीच में difference क्या है अभी आप लोग को समझ में आ गया। So whenever I say that it is a torque जो produce हुआ है electromagnetic torque है तो reluctance torque है, there should not be any confusion. Okay, ठीक है। एक और चीज बताइए मुझे यहाँ पे, is this torque continuous or not? Is this torque continuous? Hello. No, sir. No, Is sir. this- The answer is No, sir. when I say continuous torque का मतलब क्या है? Nothing but it should rotate continuously. It should rotate in this clockwise pattern. Continuously क्या रोटेट करेगा? नहीं रोटेट कर रहा है। No, तो sir. यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ एंड साउथ पोल है, यहाँ पे आके इस पोजीशन में आके ये फिक्स हो गया, एंड आफ्टर दैट देयर इज नो मूवमेंट। आफ्टर दैट इसके बाद कोई टॉर्क आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स दो यहाँ पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, दो मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट कर रहे हैं, बट देयर इज अ मैग्नेटिक लॉकिंग, अ मैग्नेटिक कपलिंग बिटवीन दीज टू फील्ड्स, एंड देयर इज नो मूवमेंट इन दिस रोटर। Okay, so the next heading is conditions for the continuous okay, let me write down this way. Conditions to satisfy continuous torque. तो बता सकते हैं what are the conditions? What are the conditions that I need to fulfill such that I'm getting a continuous torque? मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं होनी चाहिए। कपलिंग नहीं होनी चाहिए। Magnetic locking नहीं होनी चाहिए। Very good. Yes, absolutely fine. कि magnetic locking नहीं होनी चाहिए। So उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से बताइए। सर जो अंदर वाली मैग्नेट है उसके नॉर्थ और साउथ पोल को इंटरचेंज कर देंगे। ऐसे तो इंटरचेंज कर नहीं सकते हम बार बार कि नॉर्थ एंड साउथ पोल को हम इंटरचेंज करेंगे। So we can increase the magnets outside. The stator ones. स्टेटर मैग्नेट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। चलो इवन दैट इज नॉट द ऑप्शन। चलो ठीक है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। चलो दिस इज समथिंग व्हाट वी हैव बीन, हम इस तरीके से खेलते हुए हैं बचपन में, दो मैग्नेट्स को लेके हमेशा। सो विल बी यूजिंग द सेम लॉजिक। अगर वो लॉजिक आपको समझ में आ गया तो दैट इज फाइन। दिस इज नॉर्थ पोल, मान लो कि ये दिस इज द नॉर्थ पोल विच इज नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे एक मैग्नेट है नॉर्थ एंड साउथ विच इज फ्री टू मूव ऑन अ सरफेस, एंड यहाँ पर भी एक मैग्नेट है मेरे पास नॉर्थ एंड साउथ विच इज, ये मेरे हाथ में है, मतलब आई कैन मूव दिस एंड दिस इज फ्री। ठीक है, सो दिस इज साउथ एंड दिस इज नॉर्थ। ओके, सो एक चीज मुझे बताइए, जब मैं इसको नजदीक लेके जाऊंगा व्हाट विल हैपन इफ आई टेक दिस मैग्नेट क्लोजर टू दिस पर्टिकुलर मैग्नेट, व्हाट विल हैपन? क्या ये इसकी तरफ मूव करेगा? Attract. इसकी तरफ ये मूव करेगा, राइट? इट विल ट्राई टू मूव इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न। ठीक है, अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली ड्रैग करते हुए जाऊंगा तो उसके साथ ये भी ड्रैग करते हुए आएगा उसके पीछे पीछे। यस, बिकॉज ऑफ Yes, sir. अट्रैक्शन। यस, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अगर इसको मैं धीरे धीरे ड्रैग करते हुए जाऊंगा तो उसके पीछे ये भी ड्रैग करते हुए आएगा। और एल्स यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल होता, इसको मैं नजदीक लेके जाता तो साथ ही साथ ये भी मूव कर रहा होता, राइट? सो एवरीवन नोस दिस सिंपल लॉजिक। ठीक है, विल कम टू दिस पॉइंट नाउ। ओके, सो जैसे अभी one student gave me the answer by increasing the number of poles,
magnets in a sense by increasing the number of poles on the stator. By increasing the number of poles on the stator, so we can do that. So सबसे पहला चीज मैं बता देता हूँ. For the continuous torque, सबसे पहला जो कंडीशन जो है आपका number of stator poles, हमेशा number of stator poles should be equivalent to number of rotor poles. Is this point clear? Hello. एक कंटिन्यूअस टॉर्क के लिए हमेशा Yes, जो sir. ध्यान रखना है, नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे स्टेटर पोल्स कितने हैं? 2 पोल्स हैं. रोटर पे कितने पोल्स हैं? 2 पोल्स हैं. तो क्या यहाँ पे कंटिन्यूअस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? द आंसर इज नो. No, sir. यहाँ पे कंटिन्यूअस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. दैट मींस दिस इज वन ऑफ द कंडीशंस टू गेट अ कंटिन्यूअस टॉर्क. क्यों ऐसे? यहाँ पे आप देखिए, यू विल अंडरस्टैंड. आई विल टेक द सेम स्ट्रक्चर जो हमने पीछे भी ड्रॉ किया है. दिस इज नॉर्थ एंड साउथ. ठीक है. Okay, so let this be some north pole and let this be some south pole. So यहाँ पे क्या है आपको? यहाँ पे आपको clockwise direction में torque produce हो रहा है and that torque is electromagnetic torque. Okay. मान लेता हूँ कि अभी मैं रोटर के ऊपर 4 पोल्स दे रहा हूँ. Instead of taking 2 poles, I am taking 4 poles and that kind of structure is called as heteropolar structure. And उसका क्या रोल है, कहाँ पे यूज किया जाता है, क्या क्या है, we'll discuss that later. But just as a reference, I am telling you कि क्यों ऐसे. It's not proper, but please try to understand. Okay. This is north pole, south pole. This is south pole and this is north pole. Sorry. I'm making a mistake. North, south, north and south. Okay. So this is a heteropolar structure. इस kind of structure को हम क्या बोलते हैं? Heteropolar structure बोलते हैं. तो यहाँ पे बताइए what is the net torque? What is the net torque on the rotor? What is the net torque on the rotor? बताइए एक बार. Hello. What is the net torque on the rotor according to you? डबल. Net torque क्या है यहाँ पे? डबल है. देखिए एक बार. यहाँ पे आप देखिए. This is north and north. North and north क्या होगा? It will try to move in this particular direction. Yes, किस डायरेक्शन में ये? This is in clockwise. यहाँ पे south and south है. यहाँ पे क्या है? It is anti-clockwise. Similarly यहाँ पे आप देखोगे north and south will attract. And यहाँ पे north and south will attract. Both are in the opposite direction again. You are getting my point? Hello. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे जो आपका net torque होगा, the net torque that you will be getting in this particular case is always 0. यहाँ पे there will not be any torque that is getting produced over here because this and this will, यहाँ पे जो force है, यहाँ पे जो force है, that will cancel and आपका जो net torque जो होगा हमेशा 0 होता है. तो इसलिए सबसे पहला जो पॉइंट आपको पता होना चाहिए, for the continuous torque to be produced in any machine, the number of stator poles should be equal to number of rotor poles. Is that clear? So that is the first and foremost point that you need to know. इसको हम देखेंगे कि सिंक्रोनस में कितने पोल्स हैं. इंडक्शन में जब भी हम डिस्कस करेंगे क्या ये कंडीशन हमेशा सैटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. यस, इट विल ऑलवेज सैटिस्फाई. ये हमेशा सैटिस्फाई होगा. अभी हम एक डीसी मशीन का रेफरेंस लेके देखते हैं बिकॉज डीसी मशीन इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी स्टडी. विल टेक द रेफरेंस ऑफ डीसी मशीन एंड विल सी कि क्या होता है एक्चुअली. ओके, सो सेकंड कंडीशन कमिंग टू द सेकंड एंड इंपॉर्टेंट कंडीशन, बिकॉज फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी हमारे पास कंटिन्यूअस टॉर्क नहीं मिल रहा था. ठीक है. सो व्हाट इज द सेकंड कंडीशन इज फॉर द कंटिन्यूअस टॉर्क. लेट मी राइट डाउन दिस पॉइंट. फॉर द कंटिन्यूअस टॉर्क production. Not write this point production. It should be
torque. Both the MMFs. Both the MMFs should be displaced space by some angle. अच्छा, इसका मतलब बताइए आप लोग एक बार. What do you understand by this? I think it is right to an but the continuous torque, both the MMFs should be displaced in space by some angle. So this can be anything. It can be 90, 30, 60, whatever the angle it is. Okay. So when I say both the MMFs, इसका मतलब क्या बताइए? When I say both the MMFs, so what I'm referring over here? Both the MMFs का मतलब क्या है यहाँ पे? First of all, इसके बारे में बताइए. Both the MMFs. स्टेटर एमएमएफ और रोटर. Yes, exactly. यहाँ पे जैसे हमने बोला कि you have two MMFs, one is stator MMF and one rotor MMF. So both the MMFs should be displaced in space by some angle. Both the MMFs should be displaced in space by some angle. Okay. So let me take the example of a DC machine. And इस DC machine की example लेके हम देखते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा. Okay. So बताइए what is a commutator basically? What is the role of a commutator? You might have studied DC machines, right? So what is the role of a commutator? बताइए कोई. For AC to DC converter. It is a AC to DC converter. Okay, fine. Any other answers apart from this? AC to DC converter. Yes, anyone? AC to DC converter. Okay. First of all, you never use this term AC to DC converter. आप term use नहीं करेंगे. हमेशा आप use करें. If anyone asks you what is a commutator? Commutator होता क्या है? So this is how you should be. Simple answer you can give it this way. It is nothing but a mechanical converter. Mechanical converter. Okay. Mechanical converter. आपने बोला कि सर ये AC को DC में convert करता है. क्या ये AC को DC में convert करता है? And at the same time आपका ये जो commutator, which is called as a mechanical converter, also converts DC to AC. DC to AC. ठीक है? And this is what happens in the case of a generator. This is what happens in the case of a generator, and this is what happens in the case of a motor. Is this clear? So अगर आपसे किसी ने पूछा कि what is a commutator, the answer should be clear that it is nothing but called as a mechanical converter. Right? You cannot use the simple term that it is AC to DC converter. AC to DC converter आप use नहीं करेंगे. Simply it is a mechanical converter because आपने देखा होगा because of this mechanical motion only it is converting AC to DC as well as DC to AC in case of motor. Now, but apart from this, it has got a major important role. Apart from this mechanical conversion, whatever that is happening over here, it has got a major important role, जिसकी वजह से हमारे पास continuous torque produce हो रहा होता है, right? Without that, the continuous torque will not be possible in case of a DC machine. Continuous torque कभी भी possible नहीं होता है, ठीक है? For suppose, let me do one thing. Let me draw the windings over here. Let me draw the commutator. This is the commutator section. ठीक है, commutator section मतलब ब्रशेस से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ पे this is the commutator section और right. मान लेते हैं हमारे पास ये नॉर्थ है और ये साउथ पोल है. This is a north pole and this is a south pole. ठीक है, मोटर है तो हमारे पास पहले तो मैग्नेट्स है यहाँ पे. ओके, सो लेट दिस बी सम पॉजिटिव मैग्नेट्स. सो आई एम गिविंग सम सप्लाई दूंगा. सप्लाई की वजह से व्हाट विल हैपन, क्रॉस एंड डॉट इंड्यूस होगा. सो लेट दिस बी अ डॉट और अ क्रॉस. सो लेट मी टेक दिस एज अ डॉट. Let me take this as a dot. This is the EMF that we are giving. This is the EMF that we are giving. Nothing but this is a motor that I am drawing over here. ठीक है, मोटर पे हम ये सप्लाई दे रहे हैं. ठीक है, ये क्रॉस एंड डॉट आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना? क्रॉस एंड डॉट क्या है? देखिए, एक वाइंडिंग होता है आपके पास इस तरीके से. दिस इज अ वाइंडिंग. सो एक वाइंडिंग में करंट, फॉर सपोज द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम हियर. सो करंट इज एंटरिंग एंड करंट इज कमिंग आउट ऑफ दिस. सो इसलिए एक वाइंडिंग आप यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करते हो इसको. आई कैन नॉट ड्रॉ इट 3D वे में,
तो एक वाइंडिंग में एक तरीके से एंटर कर रहा है, दूसरी तरीके से बाहर आ रहा है। ओके, सो इस तरीके से आप इसको रिलेट करें। इज दिस क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन, वेरी गुड। तो यहाँ तक इसके बाद में आपको देखना है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सिस, ये किसका एक्सिस है? दिस इज द एक्सिस ऑफ योर रोटर मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है। दिस इज एक्सिस ऑफ रोटर एमएमएफ। ओके, एंड स्टेटर एमएमएफ का एक्सिस क्या होगा? दैट इज द क्वेश्चन नाउ। स्टेटर एमएमएफ का पॉइंट क्या होगा? एक्सिस कहां पर होगा, किस डायरेक्शन में होगा या कहां पर होगा? सो व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल बताइए कोई कि राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? हेलो, व्हाट इज राइट हैंड थंब रूल? राइट, सो अगर आप राइट हैंड थंब को रखेंगे, फॉर सपोज इफ यू हैव द करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, इफ यू हैव द करंट फ्लोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ थंब एंड इफ यू कर्ल योर फिंगर्स, अगर आप अपने फिंगर्स को कर्ल करते हो तो उस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। यस, आप करके देख सकते हैं। एक बार राइट हैंड लीजिए आप एक बार, अगर थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी अक्रॉस दैट पर्टिकुलर कंडक्टर। यस, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली इसका हम दूसरा भी देख सकते हैं। दूसरा क्या है? फॉर सपोज इफ द करंट इज फ्लोइंग इन द अलोंग योर फिंगर्स, नथिंग बट आप जिस फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में कर्ल कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में आप कर्ल कर रहे हो उस डायरेक्शन में अगर आपके करंट फ्लो कर रहा है, थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नथिंग बट अगर आप अपने फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हो तो आपका जो थंब जो होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ योर मैग्नेटिक फील्ड। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप देखिए, दिस इज मूविंग, दिस इज इनटू दिस लाइन, इनटू दिस प्लेन। क्रॉस का मतलब क्या होता है? इट इज इनटू दिस प्लेन, नथिंग बट यू जस्ट मूव योर फिंगर सच अ वे दैट इट इज पॉइंटिंग, एंड यहाँ से जाके कैसे कर्ल करना है फिंगर्स को? इस डायरेक्शन में आपके फिंगर्स को कर्ल करना है, नथिंग बट इट इज मूविंग इनवर्ड्स एंड कमिंग आउट ऑफ दिस लाइन, आउट ऑफ दिस कंडक्टर, नथिंग बट यहाँ से एंटर कर रहा है एंड यहाँ से बाहर आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू नीड टू कर्ल योर फिंगर्स। अगर आप अपने फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा बताइए एक बार? इफ यू कर्ल योर फिंगर्स इन दिस पर्टिकुलर पैटर्न, जिस डायरेक्शन में करंट है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, क्रॉस डॉट का मतलब कमिंग आउटवर्ड्स, ऐसे कर्ल करोगे तो फ्लक्स का डायरेक्शन कौन सा होगा? So tangential. Tangential, nothing but I'll keep it simple. Will it be in this direction or this direction? किस डायरेक्शन में होगा? Let this be some right hand. This will Right. be left. Yes, Right this hand. will be right hand side, because क्रॉस में क्या है, हम एंटर कर रहे हैं एंड डॉट से बाहर आ रहे हैं। फिंगर्स को कैसे कर्ल करना है? क्रॉस एंड डॉट। जब ऐसे आप कर्ल करोगे, थंब आपका राइट साइड आपका पॉइंट कर रहा है, बस इतना आपको पता होना चाहिए कि थंब आपका राइट साइड पॉइंट कर रहा है। फाइन, वेरी गुड। सो इफ दैट इज द केस, so that is the magnetic field produced because of your stator, and this is nothing but my stator MMF. It is nothing but my stator MMF. Okay, and if this is stator MMF, तो यहाँ पे जो interesting point है that this is, one second, अभी स्टेटर पोल्स भी होने चाहिए मेरे पास। तो स्टेटर पोल्स क्या होंगे? सॉरी, रोटर पोल्स। सो दिस इज नथिंग बट द रोटर नॉर्थ पोल एंड दिस इज नथिंग बट द स्टेटर रोटर साउथ पोल। इज दिस पॉइंट क्लियर कि मैंने नॉर्थ एंड साउथ कैसे लिखा है? ये नॉर्थ और ये साउथ मैंने कैसे लिखा है? बेस्ड अपॉन द करंट डायरेक्शन मैंने फ्लक्स निकाला। जब मैंने फ्लक्स का डायरेक्शन निकाला तब मुझे समझ में आया कि दैट दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन विद दिस आल्सो। हेलो? Yes, sir. एक और बार बता Okay. दो सर। हाँ, देखिए, अगर अपने फिंगर्स को कर्ल करते हो क्रॉस एंड डॉट के पैटर्न में, सो दिस इज हाउ यू गेट योर स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। स्टेटर एमएमएफ का डायरेक्शन क्या? ये आ गया। सो नथिंग बट उसके हिसाब से तो ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, बिकॉज फ्लक्स लाइन ऐसे जाके मूव करेंगे साउथ की साइड। ठीक है, सो ये हो गया आपका रोटर का नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका स्टेटर रोटर का साउथ पोल। हमने एक पॉइंट पढ़ा था दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क? Whenever you have two MMFs, जब भी आपके पास दो MMFs होंगे, because of the interaction of these two MMFs, a torque will be produced, and that torque is called as electromagnetic torque. तो यहाँ पे क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा बताइए एक बार? क्या टॉर्क प्रोड्यूस होगा? अगर टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो वो किस डायरेक्शन में होगा बताइए एक बार? Clockwise direction. It will be in clockwise direction. Very good, because this is
the North Pole, and this is the South Pole. Obviously, North and South will attract. North and South attract करेंगे तो जिसकी वजह से यहाँ पे टॉर्क इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा. Similarly, South and North will attract, and जिसकी वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा. Is this clear? यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. ओके फाइन, ठीक है. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बताइए. क्या ये स्टेटर एमएमएफ और रोटर एमएमएफ का फिलहाल इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? कैन आई से दैट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीस टू एमएमएफ्स इज 90 डिग्रीज? 90 degree. यस, Yes. राइट. सम फेज एंगल से डिस्प्लेस होने चाहिए. ठीक है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन में 90 डिग्री से डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे टॉर्क मिल रहा है. क्या ये 90 डिग्रीज हमेशा मेंटेन रहेगा? मुझे बताइए एक बार. विल दिस 90 डिग्रीज बी मेंटेन्ड थ्रू आउट? No, sir. The answer is no, sir. Okay, fine. Anyone answer? कोई और कोई आंसर? क्या 90 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा? Yes, sir. Yes, Huh? sir. Will this 90 degree maintained always? Yes. ये जो Yeah. 90 डिग्री होगा हमेशा मेंटेन रहेगा. And what is the reason? Who's किसकी वजह से 90 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा? बताइए एक बार. किसकी वजह से 90 डिग्री हमेशा मेंटेन रहेगा? Magnetic coupling. No, not magnetic coupling. कम्यूटेटर की वजह से. Yes, exactly. Very good. Commutator is that particular element which is helping to maintain this 90 degrees always. कैसे? अभी आप देखिए यहाँ पे एक बार. So let me do one thing. Let me copy this. Please थोड़ा सा पेशेंस से आप सुनना इसको. अगर ये आपको समझ में आ गया तो इसके बाद में सारे जितने भी आपको मशीन्स हैं that will be easy for you. So I'll take a next slide and remove few things from this. चलो कॉपी नहीं हो रहा है, मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ इसको यहाँ पे. आगे टू टेक अ मिनट और सो. तो जैसे आपने बताया, कम्यूटेटर इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट व्हिच इज हेल्पिंग टू मेंटेन दिस 90 डिग्रीज. ठीक है, मैं यहाँ पे आपके जितने भी कंडक्टर्स हैं, आई विल बी गिविंग द नंबरिंग टू दोस कंडक्टर्स सो दैट यू क्लियरली अंडरस्टैंड दैट. ठीक है, दिस 1 2 4 Fine. So I'm naming these conductors over here. This is 1, 2, 3, and 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, and commutator कहाँ पर है? This is the position of your nothing but brushes. Finally, ठीक है. यहाँ पे आप देखिए. So what is the current direction? Current direction क्या था? यहाँ पे डॉट था. Dot, 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 dot. यहाँ पे it is cross, cross, cross and cross. And torque किस डायरेक्शन प्रोड्यूस हुआ था? This was north, south, and this was north and south. ऐसा ही था? North and south. तो यहाँ पे जो टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा था, that was in this particular pattern. That was in anti-clockwise direction में था. Yes, anti-clockwise direction में था. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखिए, आफ्टर सम पर्टिकुलर टाइम ये कंडक्टर्स का पोजीशन तो चेंज होते रहेगा. 1 विल मूव टू दिस, 2 यहाँ पे आएगा, 3 यहाँ पे आएगा, 4 यहाँ पे आएगा. यस, कंडक्टर्स मूव करते रहेंगे अलोंग, जैसे ऐसे रोटेट करेगा ये. हेलो. Yes, sir. यहाँ पे आपको एक चीज देखना है. व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू नोटिस हियर इज, यहाँ पे मतलब ऑन दिस, इफ आई टेक दिस अपर हाफ एंड इफ आई टेक दिस एज द लोअर हाफ, अगर अपर हाफ की तरफ हम देखेंगे, हमेशा आपका जो करंट जो होगा दैट इज अ डॉट. हमेशा इट इज अ डॉट. एंड यहाँ पे हमेशा जो करंट है दैट इज ऑलवेज अ क्रॉस. आपको याद होगा कम्यूटेटर में क्या होता है, वंस इट क्रॉसेस, व्हाट हैपेंस, करंट का डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है इन दैट कंडक्टर.
right? So let me draw it here. So this is a north, this is a south. 3. मान लो कि अभी क्या हुआ है, कंडक्टर्स का पोजीशन चेंज हो गया. फॉर सपोज दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है. 8 और 7 ऊपर आ गए, 2 और 3 एंड 4 जो थे वो नीचे हाफ में आ गए. लेकिन यहाँ पे जो करंट का जो द डायरेक्शन रहेगा, व्हाट अबाउट द करंट डायरेक्शन, दिस विल ऑलवेज मेंटेन डॉट ओवर हियर. ये हमेशा आपका डॉट ही रहेगा. वंस इट क्रॉसेस दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा. नथिंग बट 6 जैसे ऊपर आएगा, फ्रॉम क्रॉस इट विल कन्वर्ट इनटू डॉट. समझ में आ रहा है आप लोगों को? यू माइट हैव स्टडीड दिस इन द वर्किंग ऑफ अ कम्यूटेटर. करंट का डायरेक्शन Yes, रिवर्स, sir. करंट का डायरेक्शन Yes, रिवर्स. यस, करंट का डायरेक्शन हमेशा रिवर्सल होता है, ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या ये नॉर्थ एंड साउथ पोल हमेशा ऐसे मेंटेन्ड है या नहीं है? बताइए, यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ हमेशा मेंटेन्ड है या नहीं है? ये नॉर्थ एंड साउथ तो, ये नॉर्थ एंड साउथ तो यहाँ पे फिक्स्ड है, राइट? एंड इफ यू लुक एट द poles of your rotor, north and south are always maintained. When north and south are always maintained over here, this is the axis of your rotor magnetic field and this is the axis of your stator magnetic field. And what is this displacement? This displacement is maintained always. This displacement is maintained always. यहाँ पे 90 degrees है, लेकिन बाकी मशीन में जरूरी नहीं कि हमेशा 90 होना चाहिए. But one thing is here is you need to maintain some particular displacement so as to get a continuous torque. So as to get a continuous torque. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Hello. Is this point clear? So that is the second condition that you need to fulfill for the continuous torque production. So continuous torque production. Simply हम ये लाइन लिख सकते थे क्या? ये लाइन लिख के खत्म कर सकते थे. But you need to understand कि actually होता क्या है. जैसे हमने यहाँ पे DC इसलिए लिया है क्योंकि DC आपने already discuss कर रखा. You might have studied this in your previous semester. जब आप इंडक्शन लेंगे, जब हम सिंक्रोनस लेंगे, विल ट्राई टू रिलेट द सेम पॉइंट एंड सी दैट कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट. ये जो हम पॉइंट यहाँ पे लिख रहे हैं, क्या ये पॉइंट सीरियसली वैलिड है या नहीं है वहाँ पे, वो वी विल लुक फॉर दैट आल्सो, ठीक है. सो दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. दीज आर कंप्लीटली बेसिक्स. सो इनिशियली आपके जो 2-3 क्लासेस होंगे, दीज आर द बेसिक्स सो एज टू अंडरस्टैंड योर रोटेटिंग मशीन्स. आई कैन नॉट डायरेक्टली जंप इनटू दिस इंडक्शन और सिंक्रोनस इसके बिना, ठीक है. सो व्हाट इज द टाइम? Okay, fine. It's 9:35. Next lecture hoga. So the point here is there are two types of torques. One is reluctance torque and one is electromagnetic torque. And you know very well what is the difference between this reluctance and electromagnetic. In the process of reducing the reluctance, a torque produce होता है, उसको हम बोलते हैं reluctance torque. And whenever two magnetic fields interact, एक torque produce होता है, उस torque को हम कहते हैं electromagnetic torque. Okay. And उसके बाद में we have seen conditions to satisfy continuous torque. Because यहाँ पे अगर आप देखोगे, कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा, बिकॉज एक बार ये फ्लिप मारेगा पूरा यहाँ पे इस पोजीशन में आती है, लॉक हो जाएगा, ठीक है. यहाँ पे कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. लेकिन फॉर द कंटिन्यूस टॉर्क टू हैपन, व्हाट आर द टू कंडीशंस? फर्स्ट कंडीशन इज नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोटर पोल्स. वो हमने देख लिया कि अगर इक्वल नहीं होगा तो नेट टॉर्क प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू 0. दिस इज द केस. वी हैव टेकन अ हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर ओवर हियर. हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहाँ पे कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस, सॉरी, आपका जो टॉर्क जो था, नेट टॉर्क जो था वो 0 था. ओके. नेक्स्ट वी हैव सीन दैट दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन. दो अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, अनलेस एंड अंटिल यू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कंटिन्यूअस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा. व्हाट इज दैट कंडीशन? बोथ द एमएमएफ्स शुड बी डिस्प्लेस्ड इन स्पेस बाय सम एंगल. इफ दे आर नॉट डिस्प्लेस्ड बाय सम पर्टिकुलर एंगल, एक थोड़ी टाइम के लिए टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उसके बाद में जाके फिर वो 0 हो जाएगा. ओके. एंड डीसी मशीन के एग्जांपल लेके हमने यहाँ पे देखा कि क्या ये सच में होता है. यस, इट हैपेंस दिस वे. हमेशा आपका जो रोटर नॉर्थ एंड साउथ था, हमेशा पोजीशन ये था. स्टेटर का ये था, हमेशा 90 डिग्रीज मेंटेन था, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा था. कंटिन्यूअस टॉर्क की वजह से दिस विल बी रोटेटिंग कंटिन्यूअसली. इज दिस क्लियर? Sir, if हेलो. there is no commutator, then इफ देयर इज नो कम्यूटेटर, sir अगर commutator नहीं होगा तो जो rotating magnet है, अगर किसी मशीन में कम्यूटेटर नहीं है तो जो रोटेटिंग मैग्नेट है वो रोटेट होगा, टर्न होके साउथ और नॉर्थ पे Okay, जाके जहाँ DC उसका अट्रैक्शन खत्म हो रहा है वहां जाके स्टॉप हो जाएगा. हेलो. हाँ, अब बताइए सर्जना. क्वेश्चन है कि अगर वो कम्यूटेटर नहीं होगा तो क्या होगा?
ऑब्वियसली कंटिन्यूस टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा इफ देयर इज नो कंटिन्यूस डिस्प्लेसमेंट दैट इज विल मेंटेन। यहाँ पे आप देखोगे सी ओके लेट मी टेक दिस, इज दिस अ टॉर्क और नॉट? ये टॉर्क है नहीं है यहाँ पे, यस Yes, sir. नॉर्थ एंड साउथ पोल इंटरेक्ट कर रहे हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। लेकिन इफ आई एम नॉट मेंटेनिंग दैट फेज शिफ्ट, अगर वो डिस्प्लेसमेंट को मेंटेन नहीं करूंगा तो यहाँ पे टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क हो गया आपका जीरो, right? If you see that the commutation action is not taking place, अगर कम्यूटेशन एक्शन नहीं होता है, अगर मैं इस एंगल को मेंटेन नहीं करता हूं तो ऑब्वियसली आपका जो टॉर्क जो होगा नेट टॉर्क विल कम टू जीरो। इज दैट क्लियर? बिकॉज दैट इज द नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन टू बी सैटिस्फाइड फॉर द कंटीन्यूअस टॉर्क टू हैपन, ठीक है। जैसे अब हम इंडक्शन के बारे में बात करते हैं या सिंक्रोनस के बारे में बात करते हैं, वहां पे वी डोंट हैव दिस कम्यूटेटर, वहां पे वी हैव समथिंग कॉल्ड एज स्लिप रिंग्स। स्लिप रिंग्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, हेलो। Yes, sir. The difference between DC and AC क्या होता है? DC और AC में डिफरेंस क्या है? DC में we have a commutator, AC में we have slip rings। तो उस केस में क्या होगा? We'll see that when we'll discuss about the induction और synchronous के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जांपल हमने इसलिए लिया क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे मैं इंडक्शन लेके एक्सप्लेन करूंगा, इट विल नॉट वर्क बिकॉज यू डोंट इवन नो द वर्किंग ऑफ एन इंडक्शन मशीन। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine.